वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे। इसमें से कुछ चीज़ें हम क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, जैसे कि sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाउ वी विल लर्न साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसको हम शॉर्ट में टी रेशियोज लिखेंगे इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। यू नो if we draw the two perpendicular line, then this will divide the whole plane into 4 parts. Each part is called quadrant. First quadrant, second quadrant, this is called third quadrant, and this is called fourth quadrant. Suppose we take a point A on the first quadrant. Take the angle theta, which we have to rotate the axis to reach this line. Now this angle is theta. We know the perpendiculars which are above the axis, will be treated as positive. That means this will be positive, this will be positive. While the perpendiculars which are below the axis will be treated as negative. That means this will be negative as well as this line will also negative. And the lines for the base which is on the right side of y will be treated as positive. So this is positive, whereas this is negative, and this base is negative. So first take the point A which is in the first quadrant. For this point A, this perpendicular is positive, whereas base is also positive. Hypotenuse is always taken as positive. So sin is perpendicular upon hypotenuse. It will be positive. So I will write here positive. Cos will be base upon hypotenuse. Cos theta is equal to base upon hypotenuse. So cos will be positive, and tan will be sin upon cos will be positive. Now come to the second quadrant. Take a point B in the second quadrant. Now this is the line. Suppose this is making angle theta here. What will be sin theta? Sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular is positive. Hypotenuse is always taken as positive. So positive upon positive is positive. Now cos is equal to base upon hypotenuse. For this point B, the base is negative. Base upon hypotenuse will be negative. Now tan theta is equal to sin upon cos, plus upon minus will be negative. We can also understand from here tan theta is equal to perpendicular upon base. Perpendicular is positive, but base is negative. Positive divided by negative will be negative. Now come to the third quadrant. Take a point C on the third quadrant. Let this angle is theta. Now sin theta will be perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular is negative, so negative upon positive will be negative. For cos, base upon hypotenuse, base is also negative. Tan theta is equal to sin upon cos, so negative upon negative is positive. Come to the fourth quadrant. Take a point D on the fourth quadrant. Let this angle is theta. Then sin theta will be perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular is negative, so it will be negative. And cos theta is equal to base upon hypotenuse. Base is positive, so positive upon negative is positive. Tan theta is sin upon cos, it is negative. So we have learned the signs of trigonometric ratios. Now note that in first quadrant all are positive. So all are positive. सब positive होते हैं first quadrant. In second quadrant, sin and its reciprocal is positive. Sin and reciprocal. What is the reciprocal of sin? 1 upon sin is cosec. Sin and cosec are positive, and all others are negative. It is cos is negative, reciprocal sec is also negative, tan is negative, and its reciprocal cot is also negative. For reciprocal of a negative is negative, reciprocal of positive is positive. In third quadrant, which one is positive? Tan and its reciprocal. Tan and cot are positive, and rest are negative. Positive. Now in the fourth quadrant, cos and its reciprocal. That is cos का reciprocal sec are positive, while the others are negative. आगे आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स। और इस पाई बाई 2 माइनस की क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। पाई बाई 2 इज पॉजिटिव, तो मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पाई बाई 2. माइनस एक्स मीन्स मूव इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. So I have moved the clockwise direction. So this point is pi by 2 minus x. This angle is plus pi by 2, then minus x. This angle is pi by 2 minus x. And this angle is pi by 2 minus x. So in pi by 2 minus x is in the first quadrant. In the first quadrant all are positive. So everyone will be positive. Just we have to take the complementary trigonometric function. साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, वो लगा देते हैं. जैसे कोसाइन की शॉर्ट फॉर्म है cos x. cos का कॉम्प्लीमेंट्री को हटा देते हैं, इसकी फुल नेम है कोसाइन, को हटा देंगे इट विल कम sin x. tan का कॉम्प्लीमेंट्री को लगा देंगे cot x. एंड cot का कॉम्प्लीमेंट्री tan x को हटा देंगे, इट इज फुल नेम इज कोटेंजेंट, को हटा देंगे tan x. सेक की फुल फॉर्म ये सेकेंड, अगर हम को लगा देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिल जाएगा इन cos x, और इसमें को हटा देंगे तो गेट sec x. दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ दीज एंगल्स. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब कभी भी पाई बाई 2 या पाई बाई 2 की ऑड मल्टीपल से कन्वर्जन करना होता है, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, तो हम कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री साइन का कॉम्प्लीमेंट्री cos का साइन, tan का कॉम्प्लीमेंट्री cot का कॉम्प्लीमेंट्री tan, sec का कॉम्प्लीमेंट्री cos sec, एंड cosec का कॉम्प्लीमेंट्री sec. और क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट में सब पॉजिटिव होते हैं, तो सबके सब पॉजिटिव ही हमने आ गया. आगे बढ़ते हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पाई बाई 2 पाई बाई 2 प्लस एक्स का मतलब पाई बाई 2 भी पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव है. पाई बाई 2 भी पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव है, तो पाई बाई 2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे और एक्स भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, यानी कि ये एंगल आ गया.
दिस एंगल इज पाई बाई 2 प्लस एक्स। पाई बाई 2 प्लस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, जो कि 90 से 180 के बीच का एंगल होता है। एक्स हमेशा 0 से 90 कंसिडर किया जाता है, हालांकि वो कुछ भी सकता है, लेकिन 0 से 90 कंसिडर किया जाता है। तो पाई बाई 2 प्लस एक्स साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स इज, देखिए पाई बाई 2 से जब कभी भी कन्वर्जन करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री लिखेंगे, इट विल कॉस एक्स, एंड इन द सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, सो विल राइट पॉजिटिव कॉस एक्स, यानी कि कॉस एक्स। कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स पाई बाई 2 से कन्वर्जन करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री आता है, यानी कि कॉस की जगह साइन हो जाएगा। सिर्फ साइन के बारे में सोचना है। कॉस सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा। टेन पाई बाई 2 प्लस एक्स, अब हम सबको देख लेते हैं कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव है। यहाँ से देखते भी रहेंगे साइन, और यहाँ से हम करते चले जाएंगे। टेन पाई बाई 2 प्लस एक्स, टेन पाई बाई 2 प्लस एक्स में कॉट एक्स, और साइन के बारे में सोचना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, माइनस कॉट एक्स। कॉट पाई बाई 2 प्लस एक्स, कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 10 एक्स। कॉट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, जो 10 होता है वही कॉट भी होता है, यानी कि माइनस 10 एक्स। सेक पाई बाई 2 प्लस एक्स, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉसेक, कॉसेक एक्स। सेक का साइन क्या होता है, वही होता है जो कॉस का साइन होता है, और कॉस का साइन है नेगेटिव। कॉसेक पाई बाई 2 प्लस एक्स, कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री होता है सेक, सेक एक्स। साइन क्या आएगा, साइन के लिए हम कॉसेक या कॉसेक का रेसिप्रोकल का साइन देखेंगे। कॉसेक या फिर साइन का साइन होता है प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पर प्लस सेक एक्स, तो साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स होता है, मैं इसको बनाते हैं पाई माइनस एक्स, तो पाई प्लस है माइनस एक्स, एक्स नेगेटिव है, प्लस पाई मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, एंड माइनस एक्स मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट। वापस पीछे की तरफ जाएंगे, फिर आगे सेकंड क्वाड्रेंट जाएंगे। ये क्या लाएगा, दिस एंगल इज पाई माइनस एक्स, दिस एंगल इज पाई माइनस एक्स। यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे, पहले पाई मूव किया, फिर माइनस एक्स मूव किया, माइनस एक्स मूव किया तो ये पॉइंट आ गया, एंगल ये बन गया। ये एंगल है पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स के सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट वाला एंगल है। जब कभी भी पाई या फिर पाई की किसी भी मल्टीपल से कन्वर्जन किया जाता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही रहता है। ऐसे सुनिए, जब पाई या पाई के किसी भी मल्टीपल 2 पाई 3 पाई 4 पाई से कन्वर्जन किया जाता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही रहता है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स। बस हमको साइन के बारे में देखना होगा। साइन अभी हमने यहाँ बताया था, तो ये है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन है पॉजिटिव, तो हम लिखेंगे प्लस साइन एक्स। कॉस पाई माइनस एक्स में कॉस एक्स, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव कॉस है। टेन पाई माइनस एक्स, पाई से कन्वर्जन करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही रहेगा, 10x ही रहेगा। अब साइन के बारे में सोचेंगे, पाई माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट 10 नेगेटिव होता है, हम लिखेंगे नेगेटिव। फिर इसी तरीके से कॉट पाई माइनस एक्स में कॉट एक्स, साइन के बारे में सोचेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट कॉट वही साइन होता है जो 10 का साइन होता है, यानी कि नेगेटिव। सेक पाई माइनस एक्स क्या होगा, इट इज कॉस सेक एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही रहेगा। पाई माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेक का साइन वही है जो कॉस का साइन है, माइनस एक्स। कॉसेक पाई माइनस एक्स, कॉसेक एक्स, और साइन देखेंगे, साइन वही होगा जो साइन का होता है, प्लस, तो 2 प्लस है, बाकी 4 नेगेटिव है। आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पाई प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स। सबसे पहले मैंने बताया था आपको, पाई से जब कन्वर्जन करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही रहता है, यानी कि ये साइन एक्स होगा, ये कॉस एक्स होगा, ये टेन एक्स होगा, ये सेक एक्स होगा, कॉट एक्स होगा, ये सेक एक्स, और नीचे वाला कॉस एक्स। अब साइन के बारे में सोचिए, साइन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, तो ये है पाई प्लस एक्स मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। ऐसे समझ सकते हैं, पाई पहले मूव किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर एक्स मूव किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमारे पास पॉइंट आ गया थर्ड क्वाड्रेंट का। ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, केवल 10 पॉजिटिव और 10 का रेसिप्रोकल पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों नेगेटिव होते हैं। ये क्लियर, आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 2 पाई माइनस एक्स। 2 पाई माइनस एक्स का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले 2 पाई मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, फिर एक्स मूव करेंगे क्लॉकवाइज। 2 पाई मीन्स 1 कंप्लीट रोटेशन, और उसके बाद माइनस एक्स, यानी कि नीचे की तरफ मूव करके, तो हमारा एंगल आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट। 2 पाई माइनस एक्स जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होता है। साइन 2 पाई माइनस एक्स, मैंने बताया था पाई या फिर पाई की किसी भी मल्टीपल से जब कभी भी कन्वर्जन करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही रहता है, तो साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कॉस एक्स, ये तो ये लिखेंगे। अब साइन के बारे में सोचेंगे, 2 पाई माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका साइन पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस और इसका रेसिप्रोकल, कॉस पॉजिटिव है और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। तो कॉस पॉजिटिव लेंगे और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव लेंगे, बाकी सब नेगेटिव। तो कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल सेक एक्स पॉजिटिव होता है। अब आ जाते हैं 2 पाई प्लस एक्स में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 2 पाई प्लस एक्स। 2 पाई प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट का एंगल है बच्चों बताओ। 2 पाई मतलब 1 कंप्लीट रोटेशन एंड देन प्लस एक्स, कौन सा क्वाड्रेंट का आ गया एंगल, या अगेन हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पर पहुंच गए हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी साइन पॉजिटिव होते हैं, तो सबके सब पॉजिटिव होंगे। तो साइन, क्योंकि हम पाई के किसी भी मल्टीपल से कभी भी कन्वर्जन करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही रहता है, तो साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, तो ये सब ऐसे ही रहेंगे, और सबका साइन पॉजिटिव हो रहेगा। पॉजिटिव क्यों रहेगा, क्योंकि 2 पाई प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव। तो आगे देखते हैं क्या नोट करने को कहा जा रहा है। नोट हम करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 2 एन पाई प्लस एक्स क्या होगा। 2 एन पाई का मतलब क्या हुआ, 2 एन पाई का मतलब हुआ
एन कंप्लीट रोटेशन, एन इंटू 2 पाई मतलब एन कंप्लीट रोटेशन। जैसे कंप्लीट रोटेशन हुआ, देखो ये हमने एक कंप्लीट रोटेशन किया, एक और बार को में 2 कंप्लीट रोटेशन हो गया। इस तरीके से घूमते रहेंगे, एन बार जब रोटेट कर लेंगे तो हमारा एन कंप्लीट रोटेशन हो गया। एन कंप्लीट रोटेशन होने के बाद एक्स पावर मूव करना है, 2n पाई प्लस एक्स जैसे मूव किया हमने, हम फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इस कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो तो 2n पाई प्लस एक्स से कन्वर्ट किया जाता है, तो वही सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एस के साथ आ जाता है। एग्जांपल sin 2n पाई प्लस एक्स विल बी sin x, cos 2n पाई प्लस एक्स विल बी cos x, tan 2n पाई प्लस एक्स विल बी tan x एंड सो ऑन, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। n की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकती है, n की -1 -2 0 1 2 कुछ भी हो, यही फॉर्मूले लगेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 2n पाई माइनस एक्स, 2n पाई माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ, एक कंप्लीट रोटेशन, 2 कंप्लीट रोटेशन इस तरीके से करते रहेंगे और n कंप्लीट रोटेशन के बाद माइनस एक्स का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एंगल का मूवमेंट करेंगे, तो ये हो गया 2n पाई माइनस एक्स। 2n पाई माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट पड़ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमको मालूम है क्या होता है, कॉस एंड सेक इज पॉजिटिव एंड ऑल अदर विल बी नेगेटिव, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस का साइन एक्स, कॉस 2n पाई माइनस एक्स विल बी कॉस एक्स एंड टेन 2n पाई माइनस एक्स विल बी टेन एक्स नेगेटिव का, and cot 2n pi minus x will be minus 10x, it is plus sec x, it is 10x and it is cot x। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही रहेगा, cot x, it is sec x, it is minus cos x। तो ये सेम है जैसा कि हमने 2 पाई माइनस एक्स में किया था। यहाँ पे ये पर्टिकुलर केस है, n की वैल्यू 1 है, 2 पाई माइनस एक्स हो जाएगा, तो जो ये वैल्यू आई है cos और sec पॉजिटिव है, वही चीज़ यहाँ पर है, cos और sec पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। इस तरीके से n की वैल्यू इंटीजर है तो n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, अगर n की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, ये सेम चीज़ होगी, बस n की वैल्यू 0 है। तो होप यू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय दिस, थैंक यू।